Hello, good afternoon, my dear student. How are everyone? Feeling happy? Okay, mashallah. Very good. Then, what about your learning? Studying well, all of you. Are you ready for examination? Okay. Then, do you think that is online examination? No, no much important. Yes, you giving important because we are our parents and teachers are taking more risks. You also taking more risks. Then you have to do well. Eh? You have to attend the examination well. You have to study your chapters. Okay, ready. Yes. Now I send a photo that through WhatsApp. What is no the model question paper that you have to do. Okay. Anyhow, let's start next chapter, new chapter. What is our chapter name? Lavaki Samachidari. Okay, ready? Yes, let's start now. Yes, first of all, पाठ की भूमिका लेखक ने पक्षियों के माध्यम से पक्षियों द्वारा मीडियम ऑफ द बर्ड्स यह समझाया है कि हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना सीखना चाहिए. Then our duty you have to do ourselves. Don't take help from others. Do you take help from your parents? Tight your shoe, polish your shoe, wash your clothes, like that? No, you are very good boys and girls. You doing? Are you doing yourself? Yes, I believe it. Okay, next one. स्वयं करना सीखना चाहिए. दूसरों पर आश्रित रहने वाले लोग कभी किसी कार्य में सफल नहीं होते. दूसरों को आश्रित करने. Then seeking help from others, they do not success. Okay, उनका काम सदैव अधूरा ही रहता है. It's not completed. Everything it will be pending. Why? Because they are seeking help from others. वह कभी उन्नति नहीं करता. They will not be progress. जिस व्यक्ति में अपना काम स्वयं करने की हिम्मत व सोच आ जाती है वह सदैव आगे बढ़ता रहता है. Those who have the courage, those who are doing their own work themselves, they will be have more courage and they will be progress. They can lead the life. Correct? Did you get me? Yes. Yes. Let's start the story. Are you ready? Yes. Then clap your hand loudly. Tala bachao. 1, 2, 3, start. Ready? Yes. एक लावा चिड़िया अपने बच्चों के साथ पके धान के खेतों में रहती थी. एक लावा चिड़िया अपने लावा चिड़िया बर्ड नेम बच्चों के साथ पके धान के खेतों में रहती थी. लिविंग पके धान. This was okay. Then पक्का कच्चा. Yes. Then उनका यह घर बहुत आरामदेह था. It was very आरामदेह. निर्भर. Dependent. आरामदेह में dependent. एक दिन सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बच्चों के लिए भोजन फूड फॉर बच्चों तलाश सर्चिंग जाने से पहले लेवा ने कहा देखो बच्चों फर्स्ट व्हाट ही सेड किसान बहुत जल्दी अपनी फसल काटने आएगा. कमिंग द फार्मर इज कमिंग टू get cut out his फसल. फार्मर इज कमिंग. यस. देन ऐसी स्थिति में हमें अपने लिए नया घर खोजना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड अनदर घर. यस. तुम सब अपने कान और आंखें खुली रखना. जब मैं शाम को लौटकर आओ तो मुझे बना कि तुमने क्या सुना. देन तुम सब अपने कान और आंखें कान ईयर आंख कान आंख कान ईयर आंख 9. ओके. देन खुली ओपन रखना. जब मैं शाम को लौटकर आऊँ तो मुझे बताना कि
तुमने क्या सुना? You have to hear what I will say when I reach here. Okay, when I will reach at the evening, you have to hear that what we will do. Got it? Yes. शाम को जब लवा घर लौटी तो उसने अपने परिवार को परेशान पाया. They get something. उसके बच्चे कहने लगे हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ देना चाहिए. We have to go from here very fastly. बच्चा told we have to escape from here. किसान अपने पुत्रों के साथ आया था. Farmer came with his child. Then वह कहा था कि फसल तैयार है. वह किसान told his son फसल is ready. Then it is ready. Then किसान अपने पुत्रों के साथ आया था कि वह कहा था कि फसल तैयार है. हमें कल पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए. We have to get cut out the फसल. Okay, get cut out. Want to get cut out? No. After that, will not get. Then लवा ने अपने बच्चों की बात ध्यानपूर्वक सुनी. Then he heard well that. फिर बोली अभी कोई खतरा नहीं, कल भी होशियार रहना. किसान जो कुछ करे या कहे वह मुझे शाम को बताना. Then no need of going now. We have to wait tomorrow also. What he will say tomorrow, that you have to inform me. Got it? Yes. दूसरे दिन, getting me student? Yes. They frightened. What happened? माम को देखते ही वे चिल्लाए. Then when they saw their mom, they चिल्ला mean loudly crying. Then किसान यहाँ अपने पुत्रों के साथ आज भी आया था. He came again here with his son, who the farmer कह रहा था कि यह असल जल्दी ही काटी जानी चाहिए. अगर पड़ोसी हमारी सहायता नहीं करते तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे. आओ अपने चाचा और चाचेरे भाइयों के आदि से कहो कि कल आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें. What farmer did? If पड़ोसी do not help us, we have to call others. Then our chacha, chachi, then like that we have to need some helpers now for rishtedar, for doing this work. We have need some help from others. We have to seek help from our chacha, chachere, bhai, like that. Okay, got me? Did you get me, student? Yes. Next one. Lava मुस्कराई और बोली. This time also she smiled and प्यारे बच्चों चिंता मत करो. Don't worry. चिंता मत करो. Don't worry. किसान के then you have to use then Razeen. You have to use चिंता मत करे. Don't worry. Hindi have to speak. Did you get me? Yes. किसान के रिश्तेदारों के पास तो उनकी अपनी ही फसल काटने के लिए पड़ी है. वे यहाँ फसल काटने वाला क्यों आएंगे? Then they couldn't cut their फसल. Why did they come here? Then अगले दिन they didn't get the workers. No. First time they told them they had to call the padosi. Second time they told them they had to call the chacha, chachere, like that. Okay, bhai, like that. Then now also they didn't get the workers. Then why? What purpose we are feeling? No need of. Don't worry. Chinta mat kare. Okay. Then यहाँ सफल करने भी वाला क्यों आएंगे? Okay, did you get me? You have to watch up to this video. लवा की समझदारी. एक लवा चिड़िया अपने बच्चों के साथ पके धान के खेतों में रहती थी. उनका यह घर बहुत आरामदेह था.
एक दिन सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाने से पहले लवा ने कहा, देखो बच्चों, किसान बहुत जल्दी अपनी फसल काटने आएगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने लिए नया घर खोजना पड़ेगा। तुम सब अपने कान और आंखें खुली रखना। जब मैं शाम को लौट कर आऊँ तो मुझे बताना कि तुमने क्या सुना। शाम को जब लवा घर लौटी तो उसने अपने परिवार को परेशान पाया। उसके बच्चे कहने लगे, हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ देना चाहिए। किसान अपने पुत्रों के साथ आया था। वह कह रहा था कि फसल तैयार है। हमें कल पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए। लवा ने अपने बच्चों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर बोली, अभी कोई खतरा नहीं, कल भी होशियार रहना। किसान जो कुछ करे या कहे वह मुझे शाम को बताना। दूसरे दिन शाम को जब लवा वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को बहुत भयभीत पाया। माँ को देखते ही वे चिल्लाए, किसान यहाँ अपने पुत्रों के साथ आज भी आया था। कह रहा था कि यह फसल जल्दी ही काटी जानी चाहिए। अगर पड़ोसी हमारी सहायता नहीं करते तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। जाओ अपने चाचा और चचेरे भाइयों आदि से कहो कि कल आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। लवा मुस्कुराई और बोली, प्यारे बच्चों, चिंता मत करो। किसान के रिश्तेदारों के पास तो उनकी अपनी ही फसल काटने के लिए पड़ी है। वे यहाँ फसल काटने भला क्यों आएंगे? अगले दिन लवा फिर बाहर चली गई। जब वह शाम को लौटी तो बच्चे उसे देखते ही चिल्लाए, ओ माँ, वह किसान आज कह रहा था कि यदि उसके रिश्तेदार और पड़ोसी फसल काटने नहीं आते तो वह कल खुद अपनी फसल काटेगा। तब तो हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई किसी कार्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहता है तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होता, परंतु वही व्यक्ति जब उस कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती। अब समय आ गया है जब हमें अपना घर बदल देना चाहिए। Yes, seen. How is it? Yes. Then we have to complete this. Let's complete next week. We have to complete ourselves. Before that, you have to read after me the lesson. लवा की समझदारी. Okay. एक लवा चिड़िया अपने बच्चों के साथ पके धान के खेतों में रहती थी। उनका यह घर बहुत आरामदेह था। Where is Hasib? Hasib, do you hear? Are you reading with me? Yes, very good. एक दिन सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाने से पहले लवा ने कहा, देखो बच्चों, किसान बहुत जल्दी अपनी फसल काटने आएगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने लिए नया घर खोजना पड़ेगा। तुम सब अपने कान और आंखें खुली रखना। जब मैं शाम को लौटकर आऊं तो मुझे बताना कि तुमने क्या सुना। Okay, that enough. After that, you have to watch this video. लवा की समझदारी। एक लवा चिड़िया अपने बच्चों के साथ पके धान के खेतों में रहती थी। उनका यह घर बहुत आरामदेह था। एक दिन सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाने से पहले लवा ने कहा, देखो बच्चों, किसान बहुत जल्दी अपनी फसल काटने आएगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने लिए नया घर खोजना पड़ेगा। तुम सब अपने कान और आंखें खुली रखना। जब मैं शाम को लौट कर आऊँ तो मुझे बताना कि तुमने क्या सुना। शाम को जब लवा घर लौटी तो उसने अपने परिवार को परेशान पाया। उसके बच्चे कहने लगे, हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ देना चाहिए। किसान अपने पुत्रों के साथ आया था। वह कह रहा था कि फसल तैयार है। हमें कल पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए। लवा ने अपने बच्चों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर बोली, अभी कोई खतरा नहीं,
कल भी होशियार रहना। किसान जो कुछ करे या कहे वह मुझे शाम को बताना। दूसरे दिन शाम को जब लवा वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को बहुत भयभीत पाया। माँ को देखते ही वे चिल्लाए। किसान यहाँ अपने पुत्रों के साथ आज भी आया था। कह रहा था कि यह फसल जल्दी ही काटी जानी चाहिए। अगर पड़ोसी हमारी सहायता नहीं करते तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। जाओ अपने चाचा और चचेरे भाइयों आदि से कहो कि कल आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। लवा मुस्कराई और बोली, प्यारे बच्चों, चिंता मत करो। किसान के रिश्तेदारों के पास तो उनकी अपनी ही फसल काटने के लिए पड़ी है। वे यहाँ फसल काटने भला क्यों आएंगे? अगले दिन लवा फिर बाहर चली गई। जब वह शाम को लौटी तो बच्चे उसे देखते ही चिल्लाए। ओ माँ, वह किसान आज कह रहा था कि यदि उसके रिश्तेदार और पड़ोसी फसल काटने नहीं आते तो वह कल खुद अपनी फसल काटेगा। तब तो हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई किसी कार्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहता है तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होता, परंतु वही व्यक्ति जब उस कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती। अब समय आ गया है जब हमें अपना घर बदल देना चाहिए। Once again up to this. Okay, student. Now let us conclude. Next class, let's complete the portion. Okay. Thank you, student. See you again.